اور کلام کہتا ہے جو عزت کی حالت میں ہے پر خرد نہیں رکھتا جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہوتے ہیں. جو کیا ہوتے ہیں؟ فنا ہوتے ہیں. پیرش، وہاں پہ لفظ ہے پیرش انگلش کے اندر. اور جو عزت ہوتی ہے فہم کے بغیر یہ جانوروں کے مردہ بدن کے برابر ہے جو پڑا رہتا ہے، جسے کوئی سنبھالتا نہیں ہے. ہم واپس آ رہے تھے ٹیکسلا سے، ہماری پکنک ٹرپ جب گئی تو راستے کے اندر سڑک پر بہت سارے جانور ہم نے مرے ہوئے دیکھے. کوئی بس یا کوئی کار ان کے اوپر سے گزر گئی اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. ان کی باڈیز وہاں پر ڈیکمپوز ہو رہی تھی، سڑ رہی تھی. تو جو سوٹ بوٹ ہے عقل کے بغیر، وزڈم کے بغیر، حکمت اور فہم کے بغیر، بائبل مقدس 49واں جو زبور ہے، اگر میں اس کا کانٹیکسٹ اسے آپ کو بتاؤں کہ وہ بات اینڈ پہ یہ جو 20ویں آیت ہے 49ویں زبور کی یہ کیوں لکھی گئی، تو اس کے اوپر وہ ذکر کرتا ہے کہ احمق، ادنا، اعلی، امیر اور فقیر وہ سنیں. پھر وہ کہتا ہے جو احمق ہیں وہ حیوان خصلت ہیں، یعنی کہ ان کے اندر جو احمق ہیں، بے وقوف ہیں، ان کے اندر جو وزڈم ہے، جو عقل ہے، وہ جانوروں کی انسٹنکٹ کے مطابق ہے. جو جانور کی خصلت ہے، سرشت ہے، ان کے بے عقل اور جانور کی سرشت برابر ہے. یہ کلام کہتا ہے. اور یہاں پہ جو بات ضروری ہے، انڈرسٹینڈنگ کیوں ضروری ہے، فہم کیوں ضروری ہے. انڈرسٹینڈنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں خدا نے مسائل کا حل رکھا ہوا ہے. فہم کے اندر خدا نے مسائل کا حل رکھا ہوا ہے. مسائل کا حل فہم میں ہے، معرفت میں ہے، حکمت میں ہے. خدا کی گہری پہچان میں ہے. میں جس فہم کی بات کر رہا ہوں وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی پہچان جس میں خدا ایمانداروں کو زمینی مسائل کا حل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور فہم جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ خدا کی پہچان سے نکلتا ہے. آمین آمین. تو جو عزت کی حالت میں ہے پر فہم نہیں ہے، جانور کے برابر ہے جو فنا ہو جاتا ہے. اور جو لفظ پیرش ہے ہیبرو کے اندر، اس کا مطلب ہے ٹو کٹ آف دا سائٹ آف تھیوفنی. اسٹرانگس ڈکشنری کے اندر انگلش میں اس کو اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے، آپ نے غور سے سننا ہے. ٹو کٹ آف، او ڈبل ایف والا، او ایف والا نہیں، ٹو کٹ آف دا سائٹ آف تھیوفنی. احمق ایسی چیز ہے جو خدا کے چہرے کے سامنے آتے ہی فنا ہو جاتا ہے. احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں ہے. تھیوفنی کہتے ہیں، تھیوفنی، تھیو خدا کو کہتے ہیں، اور جو لفظ آگے لگا ہوا ہے فنی، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فیس، چہرہ. اور خدا کا چہرہ بے وقوفوں کو ایکسپوز کرتا ہے، انہیں سامنے لے آتا ہے. تو جو عزت کی حالت میں ہے پر خرد نہیں ہے، وہ اور جانور برابر ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیرشمنٹ آتی ہے، فنا ہو جاتے ہیں لوگ. یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ضروری ہیں. تو امثال کی جو کتاب ہے 24ویں باب میں 3 اور 4 آیت میں اس میں لکھا ہوا ہے
हिकमत से घर तमीर होता है और फहम से उसे क़याम होता है। हिकमत से घर तमीर होता है और फहम से उसे क्या होता है? क़याम बख्शा जाता है। विजडम, हिकमत क्यों जरूरी है? जो लफ्ज विजडम इस आयत में हिकमत ट्रांसलेट हुआ है, इसके काफी मतलब है। और ये जो विजडम है, हिकमत है, इसके बारे में जो डिक्शनरीज मतलब बताती हैं, उसका एक मतलब होता है जंग के अंदर हुनरमंद होना। जंग में क्या होना? स्किलफुल होना, हुनरमंद होना। एक कहानी मुझे एक बाबे की याद आ गई, वास की किताब में लिखी हुई है। नामे बाब के अंदर एक शहर को घेर लिया बड़े बादशाह ने, दमदमे बांधे। ये छोटा शहर था और खौफ आ गया, मुसीबत है। उसमें एक बुजुर्ग है, गरीब। उसने अपनी विजडम को इस्तेमाल किया और उसने उस जंग के रुख को अमन से तब्दील कर दिया। आज बहुत से वालिदैन हैं जिन्हें मुश्किल हालात में जंग करना नहीं आती। आज बहुत से ऐसे खादमीन हैं, टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, उस्ताद हैं, उनके पास यह हिकमत नहीं कि किस तरह तलवारों का रुख मोड़ा जाता है। और वहां पर कलाम में लिखा हुआ है, मैंने जाना कि हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है। यह ज्यादा अच्छी है, यह ज्यादा जरूरी है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन, आमीन। फहम से क्या होता है? घर को क़याम बख्शा जाता है। विजडम हिकमत बनाती है, वो कब तक जिंदा रहेगा ये फहम तय करता है। तो जो लफ्ज फहम है, इसको इस तरह भी तर्जमा किया जाता है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उर्दू में इसका सादा तर्जमा यह है कि ऐसी चीज जो जिंदा तो नहीं है लेकिन उसको जिंदा के तौर पर पेश करना, उसको जिंदा के तौर पर पेश करना। फहम नजर नहीं आता लेकिन जब होता है तो अपनी मौजूदगी महसूस करवाता है। किससे? हम बातनी तौर पर इमोशनली कमजोर नहीं होते। पास्टर माइकल काफी इस पे बात कर रहे हैं। जज्बाती बीमार हैं हम, हमारी सोसाइटी ज्यादा तौर पर। हमारी जो सोसाइटी है, हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, स्कूल टीचर्स हैं, किसी भी शोबे में हैं, ये जज्बात के बीमार हैं। किसके बीमार हैं? जज्बात के बीमार हैं। और जिस कल्चर में हम हैं, इसमें इज्जत को ज्यादा अहमियत दी जाती है बजाय बाहिकमत और बाफहम होने के। इसकी वजह से बदनी बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से एल्डर साहब बदनी बीमारियां लग जाती हैं। और 90% लोग वो बीमार हैं जो जज्बाती बीमार हैं। 90%, 90%, तकरीबन 7 अरब लोग हैं। उनमें से अगर हम हिसाब करें 5 अरब और कुछ करोड़ लोग जो हैं वो इस वजह से बीमार हैं क्योंकि उनके जज्बात बीमार हैं।
वो जज्बाती तौर पर बीमार है। एक दफा मदर ट्रीजा की मुझे बात याद आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। मदर ट्रीजा को खुदा ने बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया है। मदर ट्रीजा की कहानी है कोलकाता के अंदर, इंडिया के अंदर। वो एक गरीब खाना चलाती थी जहाँ पर यतीम बच्चे बच्चियाँ होती थी। तो एक दफ़ा वो चंदा इकट्ठा करने के लिए गई। तो हुआ क्या, जो जज्बाती बीमार नहीं होते, जो फहम की स्पिरिट में होते हैं, तो वो आदमी काफ़ी बड़ा था, पॉलिटिशियन, जिसके पास मदर ट्रीजा गई। तो मदर ट्रीजा ने उससे कहा कि अपनी विजन शेयर की, बताया कि हम इस तरह बच्चों, गरीब बच्चों की मदद करते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं हम। तो मदर ट्रीजा ने कहा कि आगे हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि हमें कुछ चंदा दिया जाए। उस पॉलिटिशियन ने क्या किया, उसने मदर ट्रीजा के हाथ पर थूक दिया। उसने मदर ट्रीजा के हाथ पर थूक दिया और मदर ट्रीजा ने क्या किया, उसने उसको ऐसे कर लिया, पीछे छुपा लिया और दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। उसने कहा, पहली मुट्ठी आपने मुझे दी है, अब गरीबों के लिए कुछ करें। जज्बाती बीमार आदमी खानदान का नुकसान करता है, चर्च का नुकसान करता है, अपने आप का नुकसान करता है, अपनी सोसाइटी का नुकसान करता है। जिस जगह पर वो होता है वहाँ पर वो खिदमत के लिए नहीं बैठा होता, बल्कि अपने लिए बैठा होता है। ये मदर ट्रीजा है। What a lady she was, जोरावर। आमीन। जो इज्जत की हालत में रहता है पर फहम नहीं रखता, जानवर के बराबर है जो फना होते हैं। आखिरी बात, बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह को फहम भी कहा गया है और इल्म भी कहा गया है। कुलसियों के खत के अंदर, कलाम के अंदर लिखा है, यीशु मसीह में हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा हैं। अगर हिकमत चाहिए, विजडम चाहिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी जॉब के लिए, आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, आप जिस एक्टिविटी में इंगेज हैं, अगर आपको उस जगह पर बाअसर होना है तो हमें यीशु मसीह को जानना है। हर रोज़ किसको जानना है? यीशु मसीह को हर रोज़ हमने जानना है, हर रोज़।